Hello everyone, welcome to the syllabus layers. In this video, we will be covering all the questions related to judiciary which have been asked in the UGC NET examination in the past 12 years. So the first question which was asked in 2014, December 2014 was, which one of the following writs is issued against an inferior tribunal which has declined to exercise its jurisdiction? ठीक है, तो इंफीरियर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कौन सी रिट इज इशूड है ना, ये पूछा हुआ है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी मैंडेमस. ठीक है, मैंडेमस इज बेसिकली अ जुडिशियल कमांड issued to a public official or a lower court to perform a mandatory legal duty which they have failed or refused to do so. ठीक है, तो उन्होंने कोई लीगल ड्यूटी नहीं करी है, सो अ upper court, higher court can issue this writ to a lower court in order to compel them to perform that duty. ठीक है, इसमें आपको पता होगा देयर आर 5 writs given in the Indian Constitution under Article 32 for Supreme Court and Article 226 for High Court. ठीक है, कौन से रिट्स हैं? एक तो वही सर्ट्योरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, मैंडमस, और एक और कौन सा है लास्ट वन? habeas corpus. ठीक है, सो these are the 5 writs given under Article 32. Next question December 2014 का ही है. In India, the collegium system was first introduced in relation to which of the following? So the answer for this is judiciary. ठीक है, तो collegium system is the specific mechanism by which judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed and transferred, thus ensuring judicial independence and executive फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो हमको पता है कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ना, द सीनियर मोस्ट जजेस विल गिव रिकमेंडेशंस टू द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव को रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जज बनाइए. ठीक है, सो ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर डन, मतलब दे आर डिसाइडेड अपॉन बाय द सीनियर मोस्ट जजेस एंड देन दे आर एडवाइज्ड टू द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सो बेसिकली पूरा everything is done by the judges themselves and this ensures independence. और ये collegium system है किसमें डिफाइन हुआ था? 3 judges केस है ना, उसमें it has evolved over time. ठीक है, बीच में under the 99th Amendment Act NJAC was also brought in. NJAC stands for National Judicial Appointments Commission. तो उसमें ऐसे कोशिश किया गया था कि the executive should also play a role in judicial appointments. However, this amendment was later repealed. ठीक है, so right now we have the collegium system for appointments, judicial appointments. Next question December 2014 का है. This is an assertion and reasoning question. The assertion is the courts follow the principle of natural justice while deciding a case. And इसका reason क्या है? Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. So both the assertion as well as the reasoning are correct, and the reason is it justifies the assertion. ठीक है, नेचुरल जस्टिस क्या इंश्योर करता है? फेयरनेस इन नेचुरल टर्म्स. ठीक है, द कोर रीजन दीज प्रिंसिपल एग्जिस्ट इज दैट द प्रोसेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट and justice must be visible to the public to maintain trust. ठीक है, so both assertion as well as the reasoning are correct in this case. Next question June 2015 का है. Under which article the High Courts and the Supreme Court can issue writs? So I just covered this in the first or the second question. उसमें Article 32 and 226 के अंदर the courts can issue 5 writs. ठीक है, तो कौन से हैं? मैंडेमस, सर्ट्योरारी, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन. ठीक है, so Article 32 empowers the Supreme Court to issue writs specifically for fundamental rights. Article 226 empowers High Courts to issue writs for fundamental rights and other legal purposes. ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग
was recognized by the Supreme Court in the Selvi case judgment? 2010 का क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेल्वी केस जजमेंट बेसिकली शायद 2020 का क्वेश्चन है, ये 2010 का नहीं है. ठीक है. बेसिकली सेल्वी केस जजमेंट में राइट टू मेंटल प्राइवेसी वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. इसमें क्या हुआ था? द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द इनवॉलंटरी नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट जो करते हैं या ब्रेन मैपिंग टेस्ट्स करते हैं, दे वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3, दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ठीक है, उसको वायलेट करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू मेंटल प्राइवेसी विच वॉज मेड अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. तो सेल्वी केस जजमेंट था, उसके अंडर राइट टू मेंटल प्राइवेसी वॉज हाईलाइटेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट long last becoming, after 32 years of the republic, the supreme court of the Indians. तो ये बोला था उपेंद्र बख्शी जी ने. ठीक है. उन्होंने बोला था कि द सुप्रीम कोर्ट इज आफ्टर 32 years बिकमिंग द पीपल्स कोर्ट. ठीक है. वो हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए पहली बार काम करना शुरू कर रहा है. एंड कब, किस चीज़ के लिए बोला था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते हैं ना, PIL, उसके लिए ही हैड यूज्ड दिस स्टेटमेंट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर. लीगल स्कॉलर उपेंद्र बख्शी made this famous observation regarding the rise of public interest litigation, which finally made the Supreme Court accessible to the common masses and not just the wealthy. Next December 2015 में, in which one of the following cases the Supreme Court of India has laid down exhaustive guidelines for preventing sexual harassment of working women in place of their work? So this is a simple question. The answer is Vishakha versus State of Rajasthan and others. तो इनको हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं. ठीक है. The Vishakha guidelines were established to fulfill a legislative vacuum. They provided mandatory measures to prevent sexual harassment in the workplace until the parliament enacted specific legislation years later. ठीक है. नेक्स्ट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. वी हैव टू मैच द केसेस विद देयर रिस्पेक्टिव, जो बेसिक उनका क्यों था ये केस. ठीक है. उससे वी हैव टू मैच. फर्स्ट है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू जजेस ट्रांसफ़र. ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के रिगार्डिंग था ये केस. देन वी हैड दी MC मेहता वर्सेस श्रीराम केस. वो था ताज जो है उसके पोल्यूशन के रिलेटेड था ये वाला केस. ठीक है. नेक्स्ट है केशव नंदा भारती केस. दिस इज़ वेरी सिंपल, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए है ये. और लास्ट क्या है? ये ताजमहल वाला, ताजमहल पोल्यूशन के लिए था MC मेहता केस. ठीक है. देन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिगार्डिंग द पेट्रोल पंप अलॉटमेंट. ठीक है. सो SP गुप्ता केस को हम फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं, एंड इट वाज रिगार्डिंग द जजेस के ट्रांसफ़र. फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं इसको, SP गुप्ता केस को. ठीक है. और जो MC मेहता केस है, जो ताजमहल के पोल्यूशन के रिगार्डिंग था, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ environmental activism by the court. Environmental ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग statements about the writ of habeas corpus is correct? It can be issued to secure release of a person imprisoned by a court of law for a criminal charge. ये नहीं, गलत है. It can be issued to interfere with contempt proceedings of a court of record or by parliament. नहीं, that is also wrong. The writ is a very powerful safeguard to the subject against arbitrary acts not only of private individuals but also of the executive. This is correct. ठीक है. तो कोई भी आर्बिट्रेरी एक्ट है उसके अंडर अगेंस्ट इट इज़ अ सेफ गार्ड.
और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। ठीक है। सो हैबियस कॉर्पस इज द बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। So it commands the state or the executive or private individuals to produce a detainee and justify the detention. ठीक है, if the detention is illegal, the person is freed immediately. Next question July 2016 का है, which of the following courts have bench or benches? So क्या क्या दिए हैं, अच्छा देखो, बेंच क्या होता है, बेसिकली हाई कोर्ट किसी भी एक सिटी में रहता है ना, हाई कोर्ट। हाउ एवर इफ दे हैव अ लॉट ऑफ केस लोड, बहुत ज़्यादा ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देन दे मेक बेंचेस कि दूसरे सिटीज़ में दे हैव हाई कोर्ट का कोई भी बेंच, सो दैट केस लोड कम हो एक तो, प्लस अगर जोग्राफिकल रीच बढ़ाने के लिए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यूपी में इट्स अ वेरी बिग स्टेट, सो अगर ओनली इलाहाबाद में इफ द हाई कोर्ट इज देयर, देन जो फर्दर पार्ट्स ऑफ यूपी में जो लोग हैं उनको इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रीच यूपी, सॉरी इलाहाबाद। ठीक है। सो देर इज अ बेंच प्रेजेंट एट लखनऊ ऑल्सो, सो दैट सम ऑफ द पीपल कैन गो देयर फॉर देयर जो भी एडजुडिकेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो एक तो इलाहाबाद का बेंच है लखनऊ में, ठीक है, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच भी है, नागपुर में है और पनाजी में भी है। ठीक है। एंड जबलपुर हाई कोर्ट का बेंच कहाँ कहाँ पे है, ग्वालियर में है एंड इंदौर में है। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। जबलपुर हाई कोर्ट का बेंच इज एट ग्वालियर एंड इंदौर। सिमिलरली इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच एक लखनऊ में है, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का भी बेंच है नागपुर में और पनाजी में। ठीक है। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates. Kindly comment on our videos regarding any content suggestions which you may have. Thank you.